First of all, outlines are given here. A woman, great devotee of Neptune, the sea god. नेपच्यून क्या होता है? एक सी गॉड होता है. एक वुमन बहुत ही डिवोटी थी, बहुत ही अच्छी भगत थी एक नेपच्यून गॉड की. Went to beach, started singing a song in a praise of Neptune, the god pleased. A cow appeared when she finished the song. The woman sang another song. Another cow appeared. Woman continued to sing. Cows filled the entire beach. Woman saw a huge stone, thought she could make place for one more cow, lifted stone, threw it into the sea. The god was emerging from the sea. Stone hit him on the head. The god, angry, returned to the sea, took all the cows with him. Right. So, in this way, outlines will be given in your exams also. So, according to these outlines, you have to write the story. Right. So, let's understand the story. The reward of worship, यानी कि worship यानी कि आराधना, किसी की पूजा का reward. There was once a woman who was a great devotee of Neptune. एक woman थी जो बहुत ही बहुत ही great devotee थी नेपच्यून गॉड की. नेपच्यून क्या होता है? एक वरुण देवता जिसको हम बोलते हैं. सी गॉड होता है, द सी गॉड. She lived near the sea and daily went to the beach to pray. वो एक सी के नियर यानी कि पास में रहा करती थी और हमेशा बीच पे जाती थी प्रे करने के लिए. One day she started singing a song in praise of Neptune. एक दिन क्या हुआ? उसने एक सॉन्ग गाना स्टार्ट किया नेपच्यून की प्रेज में, तारीफ में उसकी, आराधना में उसकी. हर सॉन्ग वाज हाईली अपीलिंग एंड नेपच्यून वाज वेरी प्लीज्ड विद हर. जो उसका सॉन्ग था बहुत ही खुश करने वाला था, अपीलिंग था, और उसने नेपच्यून यानी कि गॉड को खुश कर दिया, प्लीज कर दिया. एज अ रिवार्ड ही सेंट अ काउ फॉर द वुमेन. और एक रिवार्ड के रूप में उस गॉड ने उस औरत के लिए एक काउ भेजी. The woman was very happy and started singing another song. उस काव को देखकर वुमन बहुत खुश हो गई और उसने दूसरा सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया. Just as she finished, another cow appeared on the beach. जैसे ही उसने अपना गाना पूरा किया, उसने उसको एक दूसरी काव दिखाई दी. Now the woman continued to sing one song after another till the beach was full of cows. फिर क्या हुआ? उस वुमन ने बहुत सारे सॉन्ग गाए, एक के बाद एक गाए, और वो जो बीच थी वो पूरी काउज से फिल हो गई. द वुमन लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ ह्यूज स्टोन इन फ्रंट ऑफ हर. तो उस वुमन ने अपने आसपास देखा, चारों तरफ देखा, और उसने देखा एक बड़ा सा स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर उसके पास पड़ा हुआ था. शी थॉट if she lifted the stone and threw it into the sea, she could make room for one more cow. तो उसने सोचा कि अगर मैं इस स्टोन को, इस पत्थर को यहाँ से उठा देती हूँ और उठा के इसको पानी में फेंक देती हूँ, सी में फेंक देती हूँ, तो मैं एक काव के लिए और जगह बना लूंगी और एक काव मुझे और मिल सकती है, मेरे मैं एक और गाना बोलूंगी. सो शी पुट इट इन ऑल हर माइट एंड लिफ्टेड द स्टोन. उसने क्या किया? उस स्टोन को उठाया, पूरी ताकत लगाई और उसको उठा लिया. देन शी हर्ल्ड इट इनटू द सी विद ऑल हर स्ट्रेंथ. और उसने वो उठाकर उस सी में फेंक दिया. But just at that moment, Neptune was emerging from the sea to bless her. परंतु उसी समय क्या हो रहा था? जो नेपच्यून गॉड था वो उस सी में से इमर्ज हो रहा था, ऊपर निकल रहा था, उसको ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए. द स्टोन हिट द गॉड हार्ड ऑन हिज हेड. जैसे उसने बड़ा सा पत्थर फेंका उस लेडी ने, तो वो जो पत्थर था उस नेपच्यून गॉड के सिर पर टकराया. He was very angry with the woman and returned to sea, taking all the cows with him. और वो अपनी सारी की सारी काउस लेके वहां से वापस चला गया. बहुत गुस्से में आ गया जब उसको स्टोन लगा. So, what is the moral of this story? Moral of this story is that we should not be very greedy, right? Like the lady was worshipping of God and she got some cows, but she did not stop her greediness. That's why she lost all the cows, right? So this is a story. This story you have to write in your fair notebook. Then you have to learn. After learning, you should do practice of this story in your practice notebook. Learning, writing, then practice in your practice notebook, right? Now come on the next chapter. Chapter number 5. 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
16, simple future tense, the going to form. Simple future tense, the going to form. Open this chapter, chapter number 16. Simple future tense. Simple future tense, I will see you tomorrow. The train will stop here for only 2 minutes. The principal will welcome the chief guest. The verbs in these sentences are in simple future tense. Dear students, I have told you. So we recognize the tense of a sentence by the verb, by the helping verb, by the main verb. So will or shall, and with the root form, we can say that this tense of this sentence of this sentence is simple future tense, right? Simple future tense form, positive statement, will or shall, root form of a verb. I will see you tomorrow. The principal will welcome the chief guest. Means in the positive sentence, we should use will or shall. After that, we should use root form of the verb. In the negative sentence, not in the negative sentence, not after will. Rohan will not come to school tomorrow. The principal will not address the students. So whenever we have to form the negative sentence, we should use not after will or shall. Short form. Shall not is shortened as shan't, will not is shortened as won't. तो shall not को short form में बोलते हैं shan't और will not को short form में बोलते हैं won't. Yes, no questions, will shall subject, root form the verb. Will Rohan come to school tomorrow? तो ऐसे क्वेश्चन जो यस या नो के रिप्लाई हो उनके लिए हमें क्या करना होता है, विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है और उसके बाद रूट फॉर्म आती है, विल शेल सब्जेक्ट रूट फॉर्म. क्वेश्चन बिगनिंग क्वेश्चन वर्ड्स लाइक विल शेल सब्जेक्ट रूट फॉर्म. तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो पहले हमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड फिल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, राइट. सिंपल फ्यूचर टेंस यूजेस. We use will to talk about future events in which our own wishes do not matter. तो हमें ऐसी बातों के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना होते हैं जिसमें हमारी विश कोई मैटर नहीं करती, कोई उद्देश्य नहीं रखती. जैसे ट्रैफिक विल बी वेरी हैवी इन द इवनिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर बट माई विश डज नॉट मैटर. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत ही हैवी होगी इस इवनिंग में, राइट. तो फ्यूचर के बारे में कोई बात करो तो हम वहां पे फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बिल्डिंग एट दिस साइट. आप इस साइट पर नेक्स्ट ईयर एक ब्यूटीफुल हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखोगे, राइट. तो फ्यूचर के बारे में हम कुछ कहते हैं जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वहां पे हमारी कोई विश नहीं होती, वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. We use will when we decide to do something at a time of speaking. तो जब हम स्पीकिंग के टाइम में कुछ डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में मैं वो काम करूंगा, तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. जैसे कि हैव यू लॉक द डोर. क्या तुमने डोर को लॉक कर दिया है? आई एम सॉरी, आई विल गो एंड लॉक एट इट नाउ. आई एम सॉरी, मैं अभी जाऊंगा और इसको बंद कर दूंगा. मीन्स एट प्रेजेंट आई हैव थॉट दैट व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर. प्रेजेंट में खड़े होके हम जो फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट, वी यूज विल टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर. जो हम सोचते हैं या जो हमें लगता है कि वो फ्यूचर में होगा, ऐसी बातों के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. जैसे कि आई थिंक द प्राइसेस विल बिकम स्टेबल इन अबाउट 2 months. तो जो प्राइसेस हैं, जो यानी कि जो किसी चीज के रेट्स हैं, वो स्टेबल हो जाएंगे 2 मंथ के अंदर अंदर. तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे हैं, हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, हमें बिलीव है कि ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह की बातों के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. Shall is used mostly in question forms and with I and we. So we can use shall for the future, but with I or we and basically in the questions form. तो जब हमें कोई क्वेश्चन फॉर्म करना हो, यानी कि कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलने या लिखने हो, आई और वी के साथ फ्यूचर सेंस के लिए हम shall को भी यूज कर सकते हैं. But when we use shall I or shall we are not asking a question. We are making a suggestions or an offer. जब कभी हम शेल को यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, जैसे शेल आई या शेल वी, तो हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होते,
हम कुछ सजेशन दे रहे होते हैं या ऑफर कर रहे होते हैं, जैसे कि शैल आई गेट यू कप ऑफ टी। मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप ऑफ टी ले आऊं, यानी कि मैं उसको कुछ ऑफर कर रहा हूँ, मैं उसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। शैल वी टेक अ कैब, क्या हमें कैब ले लेनी चाहिए। तो मैं सामने वाले से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को सजेशन दे रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो शेल को यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंस में, परंतु वहां पे हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम वहां पे ऑफर करते हैं या कुछ सजेशन करते हैं। Speak out these sentences in negative form and interrogative form. So you have to speak these sentences in negative or interrogative form. You have to do this exercise by yourself. Next, the going to form. We are going to shift to a new house. She has left everyone behind. She is going to win the race. The going to form also express action in the future. हम future की बातों के लिए, future में कुछ काम हो, उसके लिए हम going to को भी use कर सकते हैं। कब? The going to form is used to show intention or to show that there are indications something is going to happen. जब हमारी कुछ काम करने की इंटेंशन हो फ्यूचर में, या कुछ इंडिकेशंस हो, कुछ संकेत हो हमारे पास प्रेजेंट में कि फ्यूचर में वो काम होने वाला है, तो वहां पे हम गोइंग टू यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली हॉकी मैच, यानी कि हमारी इंटेंशन है कि हम फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। अब खेलने जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। प्रेजेंट काम आज नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में करेंगे। अब से आने वाला टाइम क्या होता है? फ्यूचर होता है। द स्काई इज ओवरकास्ट, इट इज गोइंग टू रेन। जो स्काई है बादलों से घिरी हुई है, इट इज गोइंग टू रेन, बरसात होने जा रही है। यानी कि इंडिकेशंस मिल गए हैं, संकेत मिल गए हैं। तो जब हमें किसी बात के इंडिकेशन मिल जाए, संकेत मिल जाए, इंटेंशन मिल जाए, और उसके लिए हम फ्यूचर के लिए यानी कि गोइंग टू को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे हमें अब संकेत मिल गए हैं कि हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं आर स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन, राइट। तो हमारी इंटेंशन है, हमें इंडिकेशंस मिल गए हैं इस तरह के कि स्कूल खुल सकते हैं, स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो वहां पे हम गोइंग टू यूज कर सकते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और द गोइंग टू फॉर्म। तो विल और गोइंग टू फॉर्म आपने फिल करनी है एक्सरसाइज 2 में। Now let's talk about the continuous tense. अब continuous tense के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 17, प्रेजेंट continuous tense. I am taking my lunch. The children are playing in the park. Tina is making tea. The verbs in these sentences are in present continuous tense. तो ये जो verbs दी गई हैं, इनसे पता लगता है कि ये जो tense है, हम जो sentences लिखे हुए हैं, इनमें जो tense यूज किया हुआ वो present continuous tense है। क्योंकि verbs के द्वारा, helping verbs हो या main verbs हो, उनके द्वारा ही हम किसी sentence के tense को पहचानते हैं, right? So is MR and fourth form of the verb means ing form of the verb we use in the continuous tense, present continuous tense. Let's talk about the present continuous tense form. Affirmative. It means like if sentence is positive, so first of all we need to use subject. After that is MR, then ing form of the verb. We can say it a fourth form of the verb. I am playing, you are playing, he is playing. तो जब हम जहां पर हम इज एम आर यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, तो इट मींस हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वहां पे फॉर्म कर रहे हैं। इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव, सो वी नीड टू यूज नोट आफ्टर इज एम आर एंड बिफोर द आईएनजी फॉर्म। If our sentence is question interrogative sentence, so first of all we should use is am are, then we should use subject, then we should use ing form of the verb, right? I am not is shortened as armed not. I am not की shortened form क्या है? am not और I am not. are not की short form क्या है? aren't. is not की short form क्या है? isn't, right? So these are the short forms. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूजेस। तो कहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम। आई एम ब्राउजिंग द नेट, मदर इज कुकिंग डिनर, राइट। तो जब हमें कोई काम बोलते समय कर रहे हो, जब हम कोई काम बोलते समय कर रहे हो, तो उन बातों के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब बोलते समय मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ आई एम टीचिंग यू।
तो ऐसे एक्शन जो बोलते समय गोइंग ऑन हो, चल रहे हो, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, it expresses an actions taking place at the present time but not necessarily at the present moment. ऐसे एक्शंस जो फिलहाल चल रहे हैं परंतु बोलते समय नहीं चल रहे, इस टाइम के दौरान चल रहे हैं, राइट। सपोज करो कि आप एक न्यू बुक्स पढ़ रहे हो इन दिनों, परंतु अभी नहीं पढ़ रहे हो। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो कि मैं एक न्यू बुक्स पढ़ रहा हूँ। या सपोज करो कि आपके फादर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप यानी कि शुरू कर रहे हैं। तो अब कोई आपसे पूछता है कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, तो आप बोलते हो कि वो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी नहीं कर रहे परंतु उस टाइम के दौरान कर रहे हैं, बोलते समय नहीं कर रहे परंतु उस टाइम के दौरान कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस जो उस समय नहीं चल रहे होते परंतु उस टाइम के दौरान चल रहे होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अनुष्का इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन इंडेंजर्ड एनिमल्स। अनुष्का है वो इंडेंजर्ड एनिमल्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही है, परंतु बोलते समय नहीं कर रही, परंतु उस टाइम के दौरान कर रही है, सुबह शाम, यानी कि उस समय जरूरी नहीं है कि उस टाइम कर रही हो। वी आर लर्निंग कथक, हम कथक सीख रहे हैं। हो सकता है कि बोलते समय नहीं कथक सीख रहे हो, वैसे सीख रहे हो, उस दिनों उन दिनों के दौरान सीख रहे हो, राइट। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लैनेट फ्यूचर इवेंट। जो कोई प्लानिट फ्यूचर इवेंट होते हैं, यानी कि ऐसे इवेंट जो फ्यूचर में हमने प्लान कर लिए कि वो हम पक्का करेंगे ही करेंगे, तो उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि माय पेरेंट्स आर लीविंग फॉर सिंगापुर टुमारो, मेरे जो पेरेंट्स हैं कल सिंगापुर के लिए निकलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं हमने वो प्लान कर लिया सिंगापुर के लिए निकलने के लिए फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, यानी कि प्लानिड एक्शन जो फ्यूचर में हमने फिक्स कर लिए। वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, हमने प्लान कर लिया कि नेक्स्ट वीक हम न्यू हाउस में शिफ्ट होंगे, तो हम अब बोल सकते हैं वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। इन सच सेंटेंसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द टाइम ऑफ एक्शन। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे एक्शन के टाइम भी मेंशन करें, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट continuous tense. I was taking my lunch. The children were playing in the park. The verb in these sentences are in the past continuous tense. So ये जो verbs हैं वो past continuous tense की हैं। Past continuous tense form. Affirmative, was, were, ing form the verb. I was playing, they were playing. Sentence is negative, was, were, then not, then ing form the verb. If sentence is questions, was, were put before the subject, right? Was not is shortened as wasn't, and were not is shortened as weren't, right? तो अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है तो हमें was या were लिखना होता है, उसके साथ हमें वर्ब की ing फॉर्म लिखनी होती है। So whenever we need to write the past continuous tense, so first of all we need to write the subject, after that was or verb, then ing form the verb, right? If sentence is negative we should use not after was or were. If sentence is interrogative, so first of all we should write was or were, and shortened form of was not and were not is wasn't and weren't, right? Past continuous tense uses, it expresses an action that was going on or continuing at some point of time in the past. The principal was taking a round of the school. At 6 o'clock last evening, we were flying to Berlin. तो ऐसी बातें जो पास्ट में चल रही थी, गोइंग ऑन थी किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल सर थे या मैम थे, वो स्कूल का राउंड ले रहे थे। तो मैं पास्ट के किसी मोमेंट की बात कर रहा हूँ, तब वो काम गोइंग ऑन था, चल रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, आई विल बी टेकिंग माई लंच, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। द verbs in these sentences are in the future continuous tense. Future continuous tense form, affirmative will be, shall be, ing from the verb. In negative sentence we should use not after will, before the be. An interrogative sentence we need to use first of all will or shall, right? Now let's understand where we should use future continuous tense. It expresses an action that will be going on or continuing at some point of time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम इस तरह के एक्शंस के लिए यूज करते हैं जहां पे हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई एक्शन गोइंग ऑन होगा, चल रहा होगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे आई विल बी डूइंग माई होमवर्क इन द इवनिंग, मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, इवनिंग की बात कर रहा हूँ, शाम की बात कर रहा हूँ कि शाम को मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ।
द प्रेजेंट विल बी वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड, जो प्रेजेंट है वो रिपब्लिक डे परेड देख रहे होंगे, राइट। आईएनजी फॉर्म द वर्ब, normally the ing form the verb, also called the present participle form of the verb, is made by adding ing to the root form. present sorry ing वाली फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ing ऐड कर देते हैं रूट फॉर्म के साथ, जैसे कि प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग। सेकेंड रूल, इफ अ वर्ब एंड्स इन ई वी ड्रॉप दिस ई। अगर कोई वर्ब ई पे एंड होती है, ई लेटर पे एंड होती है, तो उसको आईएनजी फॉर्म लगाते हुए वहां पे हम ई को ड्रॉप कर देते हैं और क्या लिखते हैं, जैसे कम, कमिंग, गिव, गिविंग, राइट। इन द केस ऑफ सम वर्ब्स द लास्ट लेटर इज डबल। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके साथ आईएनजी लगाते हुए लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं, जैसे कट, कटिंग, पुट, पुटिंग, बिगिन, बिगनिंग। In the case of verbs ending in ie, we change the ie to y, die, dying, lie, lying. तो कभी कभी आई ई को हम चेंज करके, यानी कि आई ई पे एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम जब आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आई ई को हटा के हम वाई फिल करते हैं, राइट। Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket in the present continuous tense. हमने यहाँ पे present continuous tense की verb fill करनी है। हमें पता है कि present continuous tense में हम use करते हैं is, am, are, then ing form the verb. So am we can use with the I, and is we need to use with third person singular, means with he, she, it, or any one name. We should use is, and with the rest of subjects we should use are, right? And after that fourth form the verb, यानी कि जहां पे हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना होता है वहां पे हम यूज करते हैं इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हमें समझना है कि इज एम आर में से इज कहाँ यूज करते हैं, आर कहाँ यूज करते हैं, एम कहाँ यूज करते हैं। we know that our m is fixed, m जो होता है वो फिक्स होता है, वो I के साथ आएगा। एंड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और कोई एक नेम, ही, शी, इट और कोई एक नेम के साथ हम यूज करते हैं इज, बाकी सभी के साथ आर, जैसे कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, नेम्स के साथ, नॉट नेम्स, आई एम सेइंग नेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल, राइट। सो वी नीड टू यूज आर, like we are doing our best. So according to this sense or this understanding we have to fill this exercise. Exercise number 2, look at this timetable. 6 a.m. brush the teeth, 6:15 take the bath, 6:30 take breakfast. So these are a timetable. Now speak out sentence like this for oral practice. At 6:30 I was brushing my teeth. तो हमें इस तरह सेंटेंस को बोलना है, जैसे 6 AM में अपने ब्रश कर रहा था, तो आपने बोलना है इस तरह के सेंटेंस, लाइक 6:15 आई वाज टेकिंग अ बाथ, 6:30 आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, 7 o'clock I was getting ready for school. So these sentences you have to do practice. Look at the sentence in exercise 2 again. Speak out sentences like this. Tomorrow at 6 a.m. I will be brushing my teeth. अब आपने क्या करना है, फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने 6 AM ब्रश द टीथ के बारे में बात करनी है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करनी है, तो आप लिखोगे या बोलोगे एट 6:30 एट 6 AM I will be brushing the teeth, right? At and tomorrow word you can add also. Tomorrow at 6:15 a.m. I will be taking a bath. Tomorrow at 6:30 I will be taking breakfast. So in this way you have to do exercise number 3. Exercise number 4, fill in the blanks with the correct form of the verb in the brackets in the future continuous tense, like I dash for you when you arrive at the airport. तो यहाँ पे जो verbs दी गई हैं उनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, लाइक आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव एट द एयरपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने बेसिकली फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, स्पीक आउट दीज सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म एंड इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये सेंटेंसेस आपने नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपने चेंज करने हैं, उनको बोलना है और उनको लिखना है। The hounds will be chasing the deer. Sentence negative, the hounds will not be chasing the deer. In interrogative sentence, we can say, will the hounds be chasing the deer? Right? So in this way, you have to do this exercise. Key point, simple present tense of
tense or present continuous tense. Look at these two sentences. I go for a walk every day at 6 a.m. I am going for a walk now. तो हमें ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट continuous टेंस में यूजेस में क्या फर्क होता है। तो जब हमें ये बताना हो कि कोई काम हम कब करते हैं या ये बताना हो कि कोई काम मैं करता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हमें ये बताना हो कि कोई काम अभी मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लाइक आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे एट 6 a.m. मैं ये बता रहा हूँ कि 6 बजे मैं हर रोज वॉक के लिए जाता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अभी मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो कोई काम हम अभी कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो काम हम ये बताते हैं कि वो मैं काम करता हूँ, तो उसके लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। So next one is simple present tense is describe an action that happens every day as a matter of habit। और जो हैबिट का सेंटेंस होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और जो हम काम अभी चल रहा है या कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। राइट, इट्स वेरी सिंपल। verbs not normally used in continuous tense। कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनके साथ हम continuous tense नहीं फॉर्म करते। right, why? Because these verbs are called known action verbs। ये जो verbs होती हैं इनको known action verbs बोलते हैं। like see, hear, taste, smell, like, want, know, think, believe, agree, understand, hate, wish। तो ये जो verbs होती हैं इनको बोलते हैं known action verbs। इनके साथ हम present या past continuous tense नहीं फॉर्म करते। जैसे कि the flowers are smelling sweet, हम इसके साथ continuous tense नहीं फॉर्म कर सकते, तो हमें बोलना चाहिए the flowers smell sweet। आई एम नॉट नोइंग हिज एड्रेस, हमें बोलना चाहिए आई डू नॉट नो हिज एड्रेस। द बुक इज कंटेनिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, हमें बोलना चाहिए दिस बुक कंटेन सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की या सिंपल पास्ट टेंस की, या फिर हाँ यस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। राइट। सो डियर स्टूडेंट,